ابھی جو آیا تھا کون تھا؟ طفیل نے سوال کیا. بوڑھی ماں منہ میں دانت نہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بتاتی ہے 4 سال ہو گئے. او میرے بیٹے میں 4 سال سے پوچھ رہی ہوں کہ تو کون, لیکن اس آدمی نے ابھی تک مجھے اپنا نام نہیں بتایا. 10 روپے تو دیتا ہے, دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ دیکھ میں نے اتنی خیرات کی. 4 سال سے یہ آدمی میرے پاس آتا ہے, میں نام پوچھتی ہوں, اس نے نام نہیں بتایا ابھی تک کہ میں کون ہوں. کہے میری ماں یہ بتاؤ کہ آخر یہ آدمی یہاں کیوں آتا ہے؟ او امیرو سن لو, اپنے گھر کی جھاڑو لگانے کے لیے نوکرانی رکھنے والوں تم بھی سن لو, 2 روپے تمہیں اللہ نے دے دیے تم بھی سن لو. اپنی بیٹی کو 1 لاکھ کا جہیز دیتے ہو صرف اس بنا پر کہ ساڑیوں کی 2 دکانیں تیرے, سونے کی 2 دکانیں تیری. چند روپیہ تجھے مل گیا سونے کی دکانیں کو, اپنی بیٹی کو 2 لاکھ کا جہیز دیا. دیکھ عمر سے بڑا دولت مند کوئی نہیں. عراق عمر کے قبضے میں, ایران عمر کے قبضے میں, یروشلم عمر کے قبضے میں, مصر عمر کے قبضے میں, کنعان عمر کے قبضے میں, بغداد عمر کے قبضے میں, یہ تمام چیزیں عمر کے قبضے میں. اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے 2 روپے کا جہیز نہیں, تو عمر سے بھی دولت مند ہو گیا, 2 دکانیں تیرے پاس سونے کی ہو گئی, 2 لاکھ کا جہیز. عورتوں کے موضوع پر کھیدو پورے میں بولنا تو سن لینا 16 اکتوبر کو, اپنی نگاہوں کو دیکھ لینا کہ آج عورتوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. دیکھ میں بتاؤں کہ جہیز کی بنا پر کتنی عورتیں ماری گئی ہیں, اور جب پورا ڈیٹیل سے سن لینا عورتوں کے اوپر مستقل موضوع سن لو. آج آئے مالداروں تم بھی سن لو, نوکر رکھنے والوں تم بھی سن لو, اور پردھانوں گاؤں کے چودھریوں تم بھی سن لو. عمر فاروق کے بارے میں سوال کر رہے طفیل, اے میری ماں یہ آدمی جو یہاں آیا تھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ کون تھا, یہ کیا کرتا ہے؟ او میرے بیٹے, ماں جواب دے رہی ہے, وہ بڑھیا جواب دے رہی ہے, او میرے بیٹے یہ تو نہیں جانتی ہوں کہ کون تھا, کیونکہ 4 سال سے اس نے نام نہیں بتایا. اور اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ وہ کیوں آیا, آخر یہ سوال کیوں کر رہے ہو, کہو میری ماں جلدی بتا طفیل کو اس آدمی کے بارے میں خطرہ ہو گیا, شک ہو گیا کہ وہ اس جھونپڑی میں کیوں آتا ہے, میں نے پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا وہم و گمان کر لیا. وہ بڑھیا جواب دیتی ہے, اب تو میں اپنا بیٹا کہنا بھی گوارا نہیں کرتی. او تو آؤ میرا اجنبی آدمی ذرا بتا, اس آدمی پر شک کر بیٹھا جس نے 4 سال سے میری خدمت کی ہے, تو اس کے اوپر شک کر بیٹھا. کہو میری ماں بتا تو صحیح کہ اس نے یہاں کر کیا کیا. کہو میرے بیٹے سن, ہاتھ بھی نہیں میرے پیر بھی نہیں, جب چاہتا ہے کہ میں اس کی نیکی بتاؤں تو سن, میں اسی جگہ پر پیشاب کر لیتی ہوں, اسی جگہ پر میں پائخانہ کر لیتی ہوں, اٹھنے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, دوڑنے کی طاقت نہیں ہے. یہ آدمی وہ ہے جب رات کی تاریکی میں میرے گھر پہ آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے میری گندگی کو صاف کرتا ہے, میرے پیشاب و پائخانے کو صاف کرتا ہے, میں لیٹرین کرتی ہوں اپنے ہاتھ سے, یہ میری گندی جگہ کو صاف کرتا ہے. ارے غور کرو مسلمانوں, اور روسیا ہو تم بھی سن لو, اور امیروں تم بھی سن لو, 2 روپے مل گئے, گھمنڈ تجھے آ گیا, اپنی بیٹی کے لیے پراپرٹی اور جائیداد والا لڑکا تلاش کرنے لگا. ارے تو بھی سن لے, یہ وہ لڑکا ہے, یہ وہ آدمی ہے جو یہاں آتا ہے, میری گندی جگہ کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے, پھر یہاں پر بیٹھ کر وہ کھانا بناتا ہے, روٹی بناتا, سبزی بناتا, سب تیار کرتا ہے. میرے منہ میں دانت نہیں کہ میں چبا سکوں, اپنے منہ سے چبا کر نکل کر, چبانے کے بعد پھر میرے منہ میں رکھتا ہے, میں اس کو نگل جاتی ہوں, اور جب تک یہ مجھے شکم سیر اور پیٹ بھر کے کھلا نہیں دیتا, یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا. طفیل دوسیک سمجھ گئے کہ عمر کیوں نہیں بتاتا تھا اپنا راز. 4 سال کے بعد یہ راز کھلتا ہے. چیخے, آئے عمر, امیر المومنین تم تو نیکیوں میں آگے نکل گئے. دوڑے وہیں سے الٹے پلٹے جاتے ہیں دربار خلافت میں, کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین تہجد سے فارغ ہو چکے ہیں. اب یہ دعا مانگ رہے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. او میرے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے, ان عذابها کان غراما. اس لیے کیا ہے میرے پروردگار, جہنم کا عذاب بہت ہی زیادہ چمٹنے والا, بہت ہی زیادہ سخت ہوگا.
पीछे से तुफैल बोले, आए अमीरुल मोमिनीन, जो आदमी रात में बूढ़ी औरतों की खिदमत करता हो उसको जहन्नम में जाने की तवक्को क्या हो सकती है? उसको जन्नत की दुआ जो मांगने की जरूरत नहीं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जो बूढ़ी औरतों की खिदमत करता हो वो जन्नती। पीछे उमर मुड़े, काबे का रब गवाह है, आज चंद नेकियां करने के बाद तू फख्र करता है। और अमीरुल मोमिनीन जब मुड़े समझ गए कि मेरा राज फाश हो गया, चीखती हुई आवाज में बोले, हाय अल्लाह, ओ मेरे परवरदिगार, आज मेरी नेकी फाश हो गई, आज मेरा राज मालूम हो गया। अल्लाह मेरी इस नेकी को रिया में न लिखना, दिखावे में न लिखना, नमूद में न लिखना। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, जाहिर नहीं होने दिया, इसने चुपके से मुझे देख लिया। फिर कहा तुफैल, तुम ये कैसे कहते हो कि उमर जन्नती है? अरे सुन लो, उमर को जहन्नम का कितना डर है। और अमीरों तुम भी सुन लो, सूद खाने वालों तुम भी सुन लो, अपने भाई की जमीन और जायदाद को दाबने वालों तुम भी सुन लो। उमर फारूक जैसा, जिसके बारे में नबी ने 3 मरतबा कहा हो कि उमर जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है, 3 डिग्रियां मौजूद, क्या कह रहे हैं कि आए लोगों, आए तुफैल, ये ना कहो कि उमर जन्नती है। सुन लो, अगर फरिश्ता आसमान का पुकार कर कहे कि इस दुनिया के सारे इंसान जन्नत में जाएंगे, सिर्फ एक इंसान जहन्नम में जाएगा, तब भी उमर को सुकून नहीं मिलेगा। और मैं ये समझूंगा कि वो एक इंसान शायद मैं हूं, वो एक आदमी शायद मैं हूं, जब तक कि वो फरिश्ता ये ना कहते कि सारे के सारे जन्नती हैं। तसव्वुर करो, गौर करो, नतीजा सामने आ जाएगा। किस्से तुमने सुने होंगे, कहानियां तुमने सुनी होंगी, एक लोटे में ख्वाजा साहब के पूरा तालाब आ गया। ये करामतें मत सुनो, आओ जरा सहाबा के वाक़या सुनो, रसूल की हदीस को सुनो, नबी के फरमान को सुनो, सब कुछ तुम्हारे सामने बैठ जाएगा। मुसलमानों, इस्लाही मुआशरे पे होने वाली इस तकरीर को और बंदगान खुदा के औसाफ पर होने वाले इस मौजू को जरा सुनते जाइए। आज मुसलमानों में क्या बुराइयां नहीं पाई जा रही हैं? मामूली सी बात पर झूठ, मामूली सी बात पर गीबत, मामूली सी बात पर अमानत में खयानत। और आओ आज मैं बताऊं, अल्लाह के नबी ने कहा, आयतुल मुनाफिक सलासा, इज़ा तुमिना खाना व इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वादा खलफ। मुनाफिक की 3 अलामतें बताई, उनमें से एक अलामत आपने क्या बताई? इज़ा तुमिना खाना, अमानत में खयानत करने वाला। अब एक मिसाल पर गौर कीजिए, अमानत में खयानत किसको कहते हैं? मसलन हमने आपके पास 100 रुपए रखे और कहा इसको आप रख लीजिए, और 1 महीने बाद जब मैं आऊंगा तो मुझे वापस कर देना। आपने कहा ठीक है। मैं 1 महीने के बाद जब लेने पहुंचा, आपने कहा भाग बेईमान, झूठ बोलता है, कब रखे? आपने उसको गसब कर लिया। यह है अमानत में खयानत। लेकिन मैंने 100 रुपए आपके पास रखे कि 1 महीने के बाद मैं लेने आऊंगा, आपने खर्च कर लिए, और 1 महीने के बाद जब मैं लेने पहुंचा तो आपने कहा भाई साहब आपके 100 रुपए तो खर्च हो गए, लेकिन बैठो मैं लाता हूं। आपने अपनी नोटों की गड्डी खोली और उसमें से 100 का नोट निकाल कर आपने मेरे हवाले कर दिया, या जिसका नोट था आपने उसके हवाले कर दिया, तो आप सादिक कहलाएंगे, सच्चे कहलाएंगे, अमानतदार नहीं कहलाए जा सकते। इसलिए कि मैंने जो 100 का नोट दिया था वो आप खर्च कर चुके हैं, और अपना नोट 100 की गड्डी में से अपना नोट दे रहे हैं, इसलिए सादिक तो हैं, सच्चे तो हैं, लेकिन अमानतदार नहीं। मैंने 100 का नोट आपको दिया, आपने उठाकर अटैची में रख दिया, और 1 महीने बाद जब मैं लेने पहुंचा आपने अटैची खोली और मेरा वही नोट जो मैं देकर गया था उसको निकाल कर आप मेरे पास लाए, उसको आपने मेरे हवाले कर दिया। अब आप सादिक और सच्चे कहलाएंगे, अमानतदार कहलाएंगे, इसलिए कि आपने मेरी अमानत मुझे वापस कर दी। तो अमानत में खयानत न होने पाए, ये करते हो तो मुसलमान नहीं बल्कि मुनाफिक। और आपको मालूम है आज तो जमीन और जायदाद पे झगड़ा और खयानत हो जाती है अमानत में। एक फैसला अल्लाह के नबी के पास आया, दोनों मुसलमान, दोनों सहाबी, एक बोला अल्लाह के नबी जमीन मेरी, दूसरा बोला अल्लाह के नबी जमीन मेरी। आपने कहा अच्छा, दोनों मुसलमान, दोनों दावेदार। आपने कहा दोनों की दलीलें सुनिए। आपने कहा मैं फैसला एक ही के बारे में करूंगा। और नबी को गाली देने वालों, आलिमुल गैब कहने वालों, सुन लो, नबी को इल्म गैब होता तो उसी वक्त बता देते ये फला की जमीन, ये फला की जमीन। आपने मुकदमे के बारे में कितना बेहतरीन फैसला किया। आपने कहा दावेदार 2, मुकदमा 2 का, दोनों मुसलमान, जमीन एक की है। सुन लो, मैंने दोनों की दलीलें सुन ली, अब मेरा फैसला सुन लो। लेकिन ऐ लोगों, फैसला सुनने से पहले एक तंबी सुन लो। तंबी है कि दोनों मुसलमान और दोनों दावा मुझसे कर रहे हैं। एक की दलील मेरी समझ में ज्यादा आ रही है, एक की दलील मेरे समझ में कम आ रही है।
एक ज्यादा बोलने वाला है, एक कम बोलने वाला है, लेकिन ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि ज्यादा बोलने वाला आदमी ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात पेश कर ले जाए, हालांकि वो झूठा हो। और ये भी हो सकता है कि कम बोलने वाला आदमी जो सच्चा है लेकिन ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात मेरे सामने नहीं कह पा रहा है, हो सकता है वो ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात अपनी अच्छी शक्ल में पेश न कर सके। ये भी हो सकता है जबान दराजी की बिना पर कोई झूठा अच्छी तरीके से मुझे समझा ले जाए। और ये भी हो सकता कि कम बोलने की बिना पर कोई आदमी सच्चा हो लेकिन अच्छी तरीके से मुझ पर दलीलें पेश न कर सके। लेकिन मैं जो फैसला करूं, अगर मेरा फैसला गलत हो जाए, किसी झूठे के हक में चला जाए, तो ये न समझना कि मेरा फैसला आखिरी फैसला है और हकदार का हक मर गया। हकदार का हक हकदार ही का रहेगा। ये मत समझना कि मैं हकदार के हक को मार लूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर मेरा फैसला गलत हो जाए, किसी झूठे को जमीन मिल जाए, सच्चा महरूम हो जाए, तो झूठ वो आदमी ये न समझे कि मोहम्मद मुझे जमीन दे रहा है, बल्कि वो ये समझे कि मेरे नबी ने मुझे जहन्नम का टुकड़ा दिया है। वो रहेगा तो जहन्नम में, जिएगा तो जहन्नम में, खाएगा तो जहन्नम में, सांस लेगा तो जहन्नम में, सब मरेगा तो जहन्नम के अंदर। आपने इतना बेहतरीन फैसला किया, फिर कहा लोगों सुन लो, अब मैं फैसला करता हूं, अगर किसी छोटे को जमीन मिल जाए तो वो जहन्नम का टुकड़ा, वो जमीन नहीं। अब सुन लो, आए फला फला वो जमीन। अभी आप ये कह पाए, अभी आपने फैसला नहीं किया कि एक चीखती हुई आवाज आई, अय अल्लाह के नबी वो जमीन मेरी नहीं, मेरे भाई की है, उसको दे दो। दूसरा बोला, अय अल्लाह के नबी ये तो झूठ बोल रहा है, ये जमीन मेरी नहीं, मेरे भाई की है, उसको दे दो। मामला देखो, अभी दोनों दावेदार, और अब ये मामला किया, अभी दोनों अलग हट गए। एक ने कहा मेरी नहीं, दूसरा कहता है इसी की है, एक कहता है इसकी, दूसरा कहता है इसकी। आखिर तक फैसला नहीं हो पाया। आपने उस जमीन को या तो यतीमों को दे दिया या मस्जिद में आपने उस जमीन को दे दिया। गौर करो, आखिर तक आप फैसला नहीं कर पाए। और नबी को इल्म गैब का फतवा देने वालों, अपने मुंह पे थप्पड़ मारो, नबी की हदीस मौजूद है और तुम आलिमुल गैब का फतवा देते हो। आओ जरा सामने आओ, फैसला हो चुका, रिजल्ट सामने आ गया। अल्लाह के नबी ने एक जजमेंट किया, एक फैसला किया और मुकदमा साफ। यहाँ सालों लग जाते हैं, फिर भी तेरा वकील न मुकदमा सुलझा पाता और तेरा जज न फैसला कर पाता है। जाओ, दुनिया के जजों को मैंने माना ही नहीं, अगर मैंने जज माना है तो वो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को, जिसके कसम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इज्जत और जलाल की कसम खाई, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ रसूल, तेरे रब की कसम, ये दुनिया वाले उस वक्त मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि वो तेरे फैसले को बिला चूहो चिरा तस्लीम न कर ले। गौर करो, तूने अबू हनीफा के फैसले को माना, किसी ने इमाम शाफी के फैसले को माना, किसी ने इमाम यानी अहमद इब्न हंबल के, किसी ने इमाम मालिक के। और हमारी खुशनसीबी का क्या कहना, मेरे नसीबे का क्या कहना, ओ अहले हदीसों की खुशकिस्मती का क्या कहना। मैंने बड़ा भी माना तो आमिना के लाल को, फैसल भी माना तो आमिना के लाल को, हमने इमाम भी माना तो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को। हमने दोगली पॉलिसी नहीं की, हमने मोहब्बत में हरजाई नहीं की, हमने इससे भी मोहब्बत उससे भी मोहब्बत, हमने दोगली मोहब्बत नहीं की। हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम इबादत करते हैं अल्लाह की, फैसला मानता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अर्श वाले के कलाम पर भी ईमान और मुस्तफा की मुस्तफाई पर भी ईमान। और इसके अलावा तीसरी चीज की हमें जरूरत नहीं। हमारे पास कुरान भी, हदीस भी, हमारे पास दिल भी और दिमाग भी। जिसके पास ये दोनों चीजें हो, तीसरे चीज की जरूरत नहीं। जिसके पास कुरान हो, हदीस हो, उसको तीसरे चीज की जरूरत नहीं है। तीसरे चीज की जरूरत उसको है जिसके पास असल ना हो, नकल हो। जिसके पास ये दोनों चीजें ना हो, उसको तीसरी चीज की जरूरत पेश आए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और करीब आओ और सुनो। अमानत में खयानत की बात तो हो गई है। आज हमने जो अपने भाइयों की जमीनें दाबी हैं, वो लोग सुन लें और कान खोल कर सुन लें। जाओ, तुमसे कोई उजरत लेने नहीं आया, तुमसे कोई चंदा मांगने नहीं आया। जो सजा देना चाहो दे देना, आइंदा कभी बुलाओ बुला लेना, और न बुलाना चाहो तो मत बुलाना। मैं कोई भिखारी बनकर नहीं आया हूं, दीन की बातें सुनाने आया हूं। सुन लो, खुलकर कह देता हूं कि अगर कोई आदमी किसी की जमीन को दाब कर रहता है तो वो जहन्नम में रह रहा है, जहन्नम में खाता है, जहन्नम में पीता है। उसकी अगर आखिरी सांस उसमें निकली तो जहन्नम के अंदर निकलेगी, मरेगा तो जहन्नम के अंदर मरेगा। सोच ले वो कि कितना सख्त मामला है। इज़ा हद्दसा कज़ब। और मुसलमान, अरे मोमिन, जरा अपने ईमान को देख। आज झूठ बोलता है 40 की
सौदा 100 में बेचकर कहता है 2 रुपए बच रहे हैं। इज़ा हद्दसा कज़ब, झूठ बोलने वाला भी मुनाफिक। और सुन मुनाफिक, झूठ बोलने वाले को कहा गया। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया कि अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, एक छोड़ सकता हूं आपके कहने से। कौन कौन सी बुराइयां? कहा मैं झूठ भी बोलता हूं, मैं चोरी भी करता हूं, डकैती भी और मैं जिना भी करता हूं। अल्लाह के नबी मैं शराब भी पीता हूं और झूठ। आपने कहा झूठ को छोड़ दे। अल्लाह के नबी मैं तो बहुत बड़ा सियासतदान समझता था और आपने मामूली सी गलती मुझसे छुड़वाई है। आपने कहा तो झूठी को छोड़ दे। अल्लाह के नबी हाथ बढ़ाइए। आपने दाहिना हाथ बढ़ाया, उसने दाहिने हाथ पे दाहिना हाथ रखकर कहा अल्लाह के नबी आप गवाह रहिए, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कहा ठीक है, आपसे सबसे कहा किसी से नहीं बोलूंगा। अल्लाह को गवाह बनाया। चला अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह करे कि अपने बात पर जमा रहे। ये शराब की बोतल रात में खोलता है, ढक्कन फेंकता है, शराब की बोतल को मुंह से लगाता है कि अल्लाह के नबी सोचने लगा, अल्लाह के नबी अगर कल मुझसे सवाल कर बैठे कि बता तूने शराब पी थी या नहीं, अगर मैंने कह दिया कि हाँ मैंने शराब पी थी तो ये झूठ हो जाएगा, तो ये सच होगा। और फिर जब एक मुजरिम अपने जुर्म को कबूल कर ले तो उसको कोड़े मारे जाएंगे। अगर मैंने कह दिया कि शराब पी थी तो कोड़े मारे जाएंगे, और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और अगर झूठ हो गया तो फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद, तो फिर अल्लाह को हम गवाह बना कर आए कि झूठ नहीं बोलेंगे। और अल्लाह के नबी से वादा करके आए। उसने शराब की बोतल को दीवार से मारा, आगे बढ़ा, जिनाकारी पर आमादा हुआ। सोचने लगा कि अगर कहीं अल्लाह के नबी सवाल कर बैठे कि बता तूने जिना किया था या नहीं, मैंने कह दिया हाँ, तो फिर मुझे कोड़े मारे जाएंगे या संसार किया जाएगा। और अगर कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। जिना को भी छोड़ा, आगे गया और देख इसकी याद के अल्फाज हैं, सोना चुराया, चांदी चुराई, बहुत कुछ चुरा लिया, दीवार फांदने वाला है। अचानक सोचता है कि अगर ये सोना ले गया और कहीं अल्लाह के नबी ने सवाल किया कि बता तूने चोरी की थी या नहीं, और अगर मैंने कह दिया कि हाँ मैंने चोरी की थी तो फिर ये जुर्म होगा, और एक वाले जुर्म जब मैं खुद करूंगा तो मेरे हाथ काटा जाएगा। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। कहा अल्लाह के, उसने चोरी का सामान अपनी जगह पर रखा, लौटा, चला। दूसरे दिन आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे, मैं तो आपको बहुत बड़ा जो है वो समझता था, लेकिन आप तो बहुत बड़े सियासतदान निकले, आपने झूठ छुड़वाया, झूठ में तो मेरी सारी बुराइयां खत्म कर दी। आपने क्या कहा? मैं जानता था क्या कि अलकिज़्ब रासुज़्ज़ुनूब, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। वो अगर झूठ तो छोड़ देगा तो तमाम बुराइयां तेरी छूट जाएंगी। मुसलमानों सिर्फ झूठ ही अगर आप छोड़ दो, आज पूरी तकरीर में सब पर अमल न करो, सिर्फ एक तहज्जा करके उठो कि मैं झूठ छोड़ दूंगा, इंशाअल्लाह बहुत सी बुराइयां तुम्हारी छूट जाएंगी। हम एक बहुत बोझ नहीं डालें, सिर्फ ये वादा करके उठो कि आज तुम झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह सारी बुराइयां छूट जाएंगी। एक वाकया इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद का है, नकल करते हैं वो कि मैं जंगल में था, आपने टिड्डी देखी है ना, मरी हुई टिड्डी, टिड्डी का एक टुकड़ा पड़ा था, तो उस पर एक चींटी चढ़ी हुई थी और चींटी उस जानवर को खींचकर सुराख में ले जाना चाहती थी, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि वो ले जा सके। चींटी ले जाने की ताकत लगा रही थी लेकिन ताकत ही नहीं थी, वो गई छोड़ के बहुत अपने सुराख में। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद फरमाते हैं मैंने देखा थोड़ी देर के बाद बहुत सी चींटियों को लेकर वो आ रही है, और जब वो आई तो फिर मैंने टिड्डी का टुकड़ा उठा लिया कि देखें अब क्या मामला सामने आता है। मैंने देखा कि वो तमाम चींटियां रुक गई और पहली चींटी तलाश करने लगी। बहुत देर तक तलाश किया लेकिन चींटी को जब टुकड़ा न मिला तो वो सारी चींटियां अपने अपने बिलों में चली गई और पहली चींटी वहीं रही। मैंने टिड्डी का टुकड़ा फिर रख दिया। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं कि वो चींटी फिर खींचना चाहती लेकिन नहीं ले जा पाई, तो फिर तमाम चींटियों को लेकर आई, मैंने दोबारा उठा लिया। अब तमाम चींटियों ने जब दोबारा तलाश किया तो फिर नहीं मिला, तो फिर सारी चींटियां चली गई, फिर पहली चींटी रही, मैंने फिर रख दिया, फिर वो चींटी गई और तीसरी मर्तबा तमाम चींटियों को लेकर आई। इमाम मोहम्मद इब्न हंबल के उस्ताद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि तमाम चींटियां मिलकर सोचने लगी कि ये तो झूठ बोल बोल के ला रही है, बार बार पागल बनाती है। इमाम मोहम्मद इब्न हंबल के उस्ताद वाकया नकल करते हैं कि सारी चींटियां मिलकर उस मरे हुए उस टिड्डी के टुकड़े को छोड़ ढूंढते ढूंढते जब थक गई तो उस पहली चींटी पे चढ़ गई और उस पे ऐसे चढ़ी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, सर अलग पैर अलग सब कुछ अलग कर दिया। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि झूठ चींटियों के अंदर भी मायूब समझा जाता है। मुसलमानों गौर करो, एक हकीर जानवर चींटी जैसा मामूली जानवर जो सबसे छोटा जानवर गालिबन, गौर तो करो झूठ उनके अंदर बुरा अशरफुल मखलूकात होकर आज हमारा यह हाल है कि मेरे कारोबार की बुनियाद झूठ पर एक आदमी ने मुरादाबाद में दुकान खोली टेलीविजन की, और दुकान खोलते वक्त उसने क्या कहा कि कुरान खानी कर दो।
आज कुरान खानी, कल से टेलीविजन की दुकान। अरे तेरे बाप की का दीन। अरे आज कुरान खानी कराता है और कल का तो टीवियां संभालने लगा। एक ने फोटोग्राफरी की दुकान खोली, एक ने झूठ की बुनियाद पर दुकान रख ली। उसी टेलीविजन की दुकान पर आयतल कुर्सी लगी हुई है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मैंने कहा 1 लाख कुरान चिपका दे खोल कर। जब तक तू झूठ को नहीं छोड़ेगा तब तक तेरी दुकान में खैर बरकत नहीं होगी। आज लोग कहते हैं मौलवी साहब कोई दुआ लिख दीजिए, मेरी दुकान में खैर बरकत नहीं होती। अरे 10 का माल 20 में बेच, झूठ बोले 2 रुपए बचते हैं, तेरी दुकान में बरकत होगी रे? जरा बता तो सही, तेरे दुकान में बरकत कहां से होगी? कुरान की आयतें लगा दी मौलवी साहब बरकत नहीं होती। हाँ, आग और पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होता। कहां देखिए, इंदिरा गांधी मरी, 3 मरतबा लोगों ने समाधि बजा के कुरान खानी पढ़ी। यहां कहते हैं कि कुरान खानी पढ़ दो, मरने वाला जन्नती, बख्श दो जन्नती, चाहे वो शराबी रहे, जुआरी रहे, कबाबी रहे, चाहे वो कुछ भी करता रहे, बस मरने के बाद 1 मरतबा कुरान पढ़ के बख्श दो जन्नती, डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। मालूम पड़ता जन्नत उसके बाप का घर है, वो जन्नत में चला जाएगा आराम से। इंदिरा गांधी की समाधि पर 3 मरतबा कुरान पढ़ा गया, क्या दो वो जन्नत फिरदौस में जाएगी, इसलिए कि 3 मरतबा पढ़ा गया। और ये 2 टके के नेता जो कल तक कुरान खानी को हराम बताते थे और आज MP बन के गए और कहते हैं कि कुरान खानी करो जायज। इंदिरा गांधी की समाधि पे गए, 3 मरतबा कुरान खानी कर गए। ये बिक गए, हुकूमत ने जिनको खरीद लिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अभी इस्लाम को इतना ही रुस्वा किया गया। अभी देखना, ईमान तुम्हें देखना हो, आओ मैं तुम्हें ईमान का नक्शा बताऊं। लाहौर की सरजमीन सुन लो मुसलमानों, रंगीला रसूल का मुसन्निफ मौजूद है, सब्जी खरीद रहा है। 1947 से पहले का वाकया है। अंग्रेजों की हुकूमत है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ। कहा आए मेरे दोस्तों, तो नौजवानों ने, बुजुर्गों, मुझे इतना बता दो खुदा रहा, ये रंगीला रसूल किसने लिखी है? उसका चेहरा दिखला दो। एक बूढ़े ने कहा कि उसने लिखी है। नंगी तलवार, लाहौर की सरजमीन, अंग्रेजों की हुकूमत। एक नौजवान आगे बढ़ा, रंगीला रसूल के मुसन्निफ, जिसने नबी को यार, मक्कार, गुंडा, लफंगा, चोर सब कुछ लिखा और जानी तक कहा कि एक एक बीवी से पेट नहीं भरा तो 11 औरतों को निकाह में ले आया। ऐसे जुमले जिसने अपने रंगीला रसूल में लिखे हों। गया ये नौजवान और उसके पेट में तलवार को घुसेड़ दिया और निकाला। रंगीला रसूल का मुसन्निफ पड़ा है, खून तलवार से टपक रहा है। तलवार लेकर अदालत में पहुंचा। अंग्रेज जज है, यह अदालत में जाकर कहता है, आए जज साहब, मैंने रंगीला रसूल के मुसन्निफ को कत्ल कर डाला है, जो सजा देना चाहो दे दो, यकीन नहीं आए तो देख लो मैं अपनी तलवार को रंगा हुआ लेकर आ रहा हूं। जज ने सोचा कि कहीं मेरा भी ओम गणेशाय स्वाहा ना हो जाए। कहा बेटा ये क्या कर डाला? पुलिस को इशारा किया, जेल में ले गए। एक वकील गया, आए बच्चे, आए नौजवान, तूने बहुत बहादुरी का काम किया। कहा बहादुरी का काम तो मैंने आज जिंदगी में पहली बार किया है, जाओ जो सजा देना चाहो दे दो। कहा नहीं, मैं सजा नहीं देना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि जब तुम्हें अदालत में जाना पड़े तो सिर्फ इतना कह देना कि मैंने कत्ल नहीं किया, मैं तुम्हें बचवा लूंगा, आजाद करा दूंगा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, किताब मौजूद है, इंग्लिश किताब। सुन लो उस नौजवान ने क्या जवाब दिया। नौजवानों, खुदा तुमसे मैं खिताब कर रहा हूं, जरा देखो ईमान किसको कहते हैं। वो नौजवान कहता है, जज साहब, आए वकील, झूठ बोलने का मशवरा देने आया है मुझे, ये नहीं जानता कि आज जिंदगी में मैंने पहली बार कोई नेकी का काम किया है। कहा क्या कहना चाहे तो झूठ नहीं बोलोगे? कहा बिल्कुल नहीं। कहा कि बेटे झूठ बोल दो मैं बचवा लूंगा। कहा जो सजा देना चाहो दो, मैं अदालत में भी कहूंगा कि रंगीला रसूल के मुसन्निफ को मैंने मारा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने कोई नेकी का काम किया। और यकीन मानो उस नौजवान ने मारा काबे के रब की कसम, जिसने जुमे की नमाज भी कभी नहीं पढ़ी थी। जुमा तो छोड़ो, ईद और बकरीद की नमाज भी जिसने नहीं पढ़ी और किसी मरने वाले का जनाजा भी उसने नहीं पढ़ा, उसने इसको कत्ल किया और कहता जिंदगी में पहली बार नेकी का काम करके आया हूं। वकील ने कहा कह दो। क्या वकील साहब, इसी सारे में
कत्ल होना चाहता हूं, शायद यही नेकी मुझे बख्शवा ले, मुझे जन्नत तक पहुंचा दे। कहा आज तो बड़ा पक्का ईमान तेरे अंदर पैदा हो गया। कहा अच्छा तेरी बीवी के पास जाता हूं। पूरे वकील का स्टाफ बीवी के पास पहुंचा। मोहतरमा तुम्हारे शौहर को फांसी हो रही है, कत्ल की सजा, तुम्हारे पास मासूम बच्चा, जाओ इस बच्चे को लेकर, बच्चे को दिखाना बच्चे की मोहब्बत का। उसने कहा मेरे शौहर ये तो बच्चा है जिसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। कहा बीवी क्या कहना चाहती हो? कहा सिर्फ ये कि इस बच्चे की खातिर झूठ बोल दो। तुम्हारी जवान बीवी मौजूद है, बच्चा मौजूद है, क्या करोगे? कहो मेरी बीवी जन्नत की खुशबू मुझे नजर आ रही है, मुझे सुंघाई दे रही है, जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने नेकी का काम किया है और आज तुम मुझे रोकने के लिए आई है। कब मेरे शौहर इस बच्चे की खातिर कम से कम एक मर्तबा झूठ बोल दो। वकील कहते हैं कि मैं तुम्हें बचवा लूंगा। कहो मेरी बीवी आज तू मेरे सामने आई, तू भी सुन ले कि आज ये तेरा शौहर इतना गुनाहगार है कि कभी तेरी बात भी न मान सका, कभी तेरे हुकूक भी सही तौर से पूरे न कर सका। मैंने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, मैंने तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, मैंने फजर का जोर और असर की नमाज भी नहीं पढ़ी, मैंने जुमा भी नहीं पढ़ा, ईद बकरीद की नमाज भी नहीं पढ़ी। और मेरी बीवी मैंने किसी का जनाजा भी न पढ़ा। जब मैंने ये देखा कि मेरे नबी पर एक आदमी ने तौहीन वाले जुमले लिख डाले हैं तो मुझे गैरत आई, मुझे जोश आया और मैंने उसका पेट फाड़ डाला। जिंदगी में आज मैंने पहली मर्तबा नेकी का काम किया है और आज तुम मुझसे कहती हो कि तुम इस काम को पलट दो, इस इरादे से बाज आ जाओ। ओ मेरी बीवी दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए मेरे जबान से झूठ नहीं निकलवा सकती। कहो मेरे प्यारे शौहर तो कम से कम इस मासूम बच्चे की तरफ एक मर्तबा मोहब्बत की नजर तो डाल लो। तुमने तो चेहरा ही फेर लिया, कम से कम एक मर्तबा इसका चेहरा देख लो, इस मासूम बच्चे को प्यार तो कर लो। कहो मेरी बीवी तू जानती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे अपने बेटे को जब लिटाते हैं और उसकी गर्दन पे जब छुरी चलाते हैं, छुरी चलाते वक्त भी अपनी आंखों से पट्टी बांध लेते हैं कि कहीं बेटे की मोहब्बत मेरे नजरों से टकरा ना जाए, कहीं बेटे की मोहब्बत में मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने से गाफिल न रह जाऊं। इब्राहिम को खतरा था कि बेटे को देखने से कहीं हुक्म खुदा बंदी में कसूर न हो जाए और मेरी बीवी बच्चे को देखने से इब्राहिम को खतरा हो गया था। तो फिर मेरा ईमान तो उनकी पैर की मिट्टी और धूल के बराबर भी नहीं है। मैं अपने बेटे को देखूं तो ये कैसे हो जाए? हो सकता है कि मेरा बेटा मेरी नजर ज्यादा प्यारी मेरे बच्चे पर पड़ जाए और मेरे बेटे की शक्ल को देखकर मैं झूठ बोलने पर मजबूर हो जाऊं। ओ मेरी बीवी बच्चे की मोहब्बत कहीं मुझे इस जिहाद से या इस शहीद हो जाने से मुझे रोक न दे। जाओ मैं अपने बच्चे को भी नहीं देखूंगा। बीवी लौट गई, बच्चा लौट गया, सब चले गए और इस आदमी को सूली पे लटका दिया गया, कत्ल कर दिया गया। नौजवानों ईमान जब करवट बदलता है तो देखो बेनमाजी भी कभी कभी ईमान का जोश जब उनको आता है तो इस तरीके की बात करने लगते हैं कि जाओ मैं झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों जरा गौर करो ईमान किस चीज का नाम है। कावाइदा वादा खिलाफ, मुनाफिक की तीसरी अलामत है कि वादा खिलाफी करता है। 2 बजे आऊंगा, पहुंचता है 4 बजे। और आज के हमारे नेताओं का हाल क्या मालूम है? हम और नेता, अरे उनका धर्म तो है ही जैसा है। हम मुस्लिम नेताओं की बात कर रहे हैं, आजम खान और उबैदुल्ला की बात कर रहे हैं। आलिम हैं, 2 बजे आ रहे, पहुंचते 10 बजे। तेरे बाप का दिन था, यही पढ़ा था। जाओ, अगर CID नोट कर रही है तो जो बात मैं कह रहा हूं वही नोट करे। मैं उनको उनके धर्म का वास्ता देता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम स्पेशल CID तो भेजी जाती है। मेरी आवाज गुजरात के कानों तक नहीं पहुंचती, कम से कम इनके जरिए पार्लियामेंट के ऐवानों तक तो पहुंचेगी, वहां तक तो पहुंचेगी। जाओ कोई डायरी वाला हो नोट कर ले, और जाओ कोई कॉपी लेकर आया हो तो नोट कर ले, और मेरी आवाज वहां तक पहुंचा दे कि सुन उबैदुल्ला खान आज़मी का इस्लाम यह है कि 8 बजे वादा करके 12 बजे पहुंचता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम यह है कि एक तरफ कहा, एक आदमी ने कहा नबी यहीं रहो, कहा ठीक है क्या चाहते हो? कहा मैं अभी आता हूं, अल्लाह के नबी यही रहिए। अल्लाह के नबी वहीं मौजूद। खसाइस उठाओ सेवती की, लिखा है 3 दिन तक वो आदमी नहीं आया, भूल गया, और अल्लाह के नबी ने 3 वक्तों की नमाजें वहीं पढ़ी, खाना वहीं आ गया। लैट्रिन की जब जरूरत पेश आई तो किसी को बिठा गए कि जाओ मैं जा रहा हूं लैट्रिन के लिए, कोई आए तो कह देना मैं अभी आ रहा हूं। 3 दिन तक वहीं इंतजार करते रहे। वादा किया था कि जब तक तू नहीं आएगा मैं यहीं रहूंगा। 3 दिन के बाद वो किसी काम से बाजार आया, कहा अल्लाह के नबी आप यहां अभी तक बैठे? कहा तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक मैं अभी आ रहा हूं।
اور میں نے کہا تھا کہ جب تک تم نہیں آؤ گے تب تک میں یہی رہوں گا. اور اے صحابی سن لو, اگر محمد رسول اللہ کی عمر قیامت تک ہو جاتی اور تو قیامت تک یہاں نہیں آتا تو کعبے کی رب کی قسم محمد کو یہاں بیٹھا ہوا دیکھتا. ایک طرف یہ وعدہ, ایک طرف عبید اللہ کا وعدہ, ایک طرف اعظم خاں کا وعدہ, یہ مولوی وارث انبیاء کا دعوے دار, اور ایک طرف یہ وعدہ. غور کرو کہ 3 دن تک. اور سن لو, غزوہ بدر جب پیش آیا تو صرف 313 مسلم صحابہ اور 1000 کا لشکر, ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000. اگر اس وقت کوئی ایک بھی اور داخل ہو جائے مسلمانوں میں تو اللہ کے نبی کو ضرورت تھی, ایک آدمی کی ضرورت تھی. ایک آدمی بھی اگر آ جائے تو اس کو آپ قیمتی سمجھ رہے تھے, کیونکہ 313 اور 1000 بہت ڈفرنس تھا. اس موقع پر 2 آدمی آئے. کون؟ حضرت حذیفہ اور ابو جندل. سن لو اور نوٹ کر لو اپنی کاپیوں پر. 2 آدمی آئے, کہا اللہ کے نبی میں بھی جنگ بدر میں شریک ہوتا ہوں.